In last class, we studied about what are the various importance of the rural marketing and scope of rural marketing. Who is going to tell me that what are the importance of rural marketing? Who is going to tell me about it? Raise your hand. जो last class में हम लोगों ने points किए थे, कौन मुझे बताएगा? Ma'am, importance we have discussed the several points. First one is reduce. Ma'am, in previous class we have studied and we have discussed several points under the importance of rural marketing. The first point is reduce the burden of urban population. Second one is employment generation. Third one is rapid economic growth. Fourth one is development of agri-based industry. Fifth one is price stability. As we have said that under this, as the demand increases, the price of the in the rural area they can become stable because the demand of the consumer increase due to stability. And sixth one is improve the rural infrastructure. For example, the sanitation facility, water facility, irrigation facility, and the road facility, transport facility under this. And under the scope of the rural marketing, we have discussed several points. For example, first one is large number of population. Second one is growth in consumption. Third one is in third point we have discussed the rising rural prosperity. Prosperity. And fourth point we have discussed that the in fourth point we discussed the changing the lifestyle of the people and also the life cycle of the rural people. And fifth one is Okay, good. Who is going to tell me about the scope of marketing? कौन बताएगा मुझे scope of rural marketing? तो 3 points इसमें हम लोगों ने discuss किया था. प्रिया, roll number 8, BCom. Roll number 8. Yes, ma'am. Ma'am, actually the थोड़ा network issue है तो ma'am in scope ma'am migration is increased in the urban area with the help of rural marketing, and demand for the luxurious product is also increased in the rural area, and ma'am, rural prosperity is increased. That's it, my Okay, let's start with the another point, that is rural versus the urban mindset. It's all about the types of consumer, what kind of perception they have for the product and services, what kind of thinking they have. Like both market, urban market and rural market, is very much different. Obviously, because of the economical situation, because of the environment, and because of the culture, we can say that there is a vast difference between urban and rural market. But we now in this class we are going to understand that what is the various. So in this class we are going to understand about the mindset of the consumers, what kind of mindset of the urban and rural consumers have, what kind of what kind of pattern they are using while purchasing the product, what kind of thinking they have. So we are just going to cover all this point, right? If we are talking about the rural areas, on the basis of natural vegetations, raw materials, the availability of all these things are in the rural areas, we all know. But in the case of the urban settlement is something which is decided by the people, that how they are going to settle. After, if we can say that after independence, that the majority of areas are under the rural areas. But slowly and gradually, so many states, basically states bane, then so many cities वगैरह आए, state के capital बने. So gradually it was happening. So urban settlement is something which is planned. मतलब urban settlement ऐसा था जिसको plan किया गया, infra बनाया गया, proper education system बनाया गया, मतलब everything according to the human convenience हमने वहाँ पर बनाया.
बट आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं विच इज नॉट टच्ड बाय द पीपल, वो वहां पर आज भी लोग नेचुरल वेजिटेशन पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं है। तो ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अलग अलग तरीकों से कि डिफरेंस क्या क्या है, इंफ्रा के हिसाब से क्या क्या अंतर है दोनों के बीच में, आपके रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, सोशियो कल्चरल के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, हैबिट्स, कंपटीशन और कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका रोड्स हो गए, आपके बिल्डिंग्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया। ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब जैसे मॉल वगैरह, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स, ब्रांडेड स्टोर्स, तो ये सारे ऑर्गेनाइज मार्केट होते हैं, ठीक है। फिर आपके मंडीज वगैरह जो होते हैं दैट इज अनऑर्गेनाइज, बट जो आपके ऑर्गेनाइज होंगे जैसे कि आपके शॉप वगैरह जो होंगे। अदर फैसिलिटीज जो है अर्बन एंड रूरल मार्केट में बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंट है आपके अर्बन एंड रूरल एरियाज में। इन अर्बन एरियाज में एवरीथिंग गेट्स इम्प्लीमेंटेड सून, हर एक चीज को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। एंड अवेलेबिलिटी जो है वहां पर सबसे पहले होती है कोई भी चीज की, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह भी हो, ठीक है। वेयर एज रूरल मार्केट में एवरीथिंग इज टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, sorry, is implemented within a time period, within some time. The ratio if we take between the urban and rural areas, the urban areas में हर चीज जल्दी भी होता है, फैसिलिटी वहां पर है भी अवेलेबल बहुत सारे, बट रूरल एरियाज में हर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। क्यों? इसका रीजन भी बहुत बड़ा है, देखो स्कैटर्ड है रूरल एरियाज, क्या है ना, दैट इज वेरी मच स्कैटर्ड और बहुत सारे हैं, बट द कंपैरेटिवली टू सिटीज बहुत लिमिटेड है। तो सिटीज लिमिटेड भी है और हर एक ऑथोरिटी जो है दैट इज सिचुएटेड इन सिटी, सो एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेगा तो एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन द सिटी और कैपिटल फर्स्ट, then after it will move toward the rural areas. First they will move toward the district and then after it will move toward the rural areas. एंड इन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग का जो पूरा का पूरा जो वर्क लेवल जो डिवाइडेड है वो सबसे पहले सेंट्रल से स्टेट में, स्टेट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स के बाद दैट इज इन विलेज। सो बिकॉज ऑफ दिस डिविजन, बिकॉज ऑफ दिस लेवल और बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की, एवरीथिंग इज रीचिंग द रूरल एरियाज means late, we can say it is implementing late as comparison to the urban areas. क्लियर हो गया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। द सेकेंड पॉइंट क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द आपका इनकम, रिलेटेड विद द कंजप्शन, रिलेटेड विद द सेविंग्स। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर जो अर्निंग कैपेसिटी है रूरल मार्केट्स की, वो और जो मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है हर एक एरिया, अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लिटिल बिट हाई, बट इन द रूरल एरियाज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो, ठीक है। सो अगर इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर वही है कि अर्निंग कैपेसिटी आपकी रूरल मार्केट का और अर्बन मार्केट का क्या है। सो वी कैन से दैट द इनकम लेवल्स जो हैं आपके रूरल एरियाज के वो बहुत ज्यादा सीजनल और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं दिस इज नॉट इन दिस टर्म, मतलब ये एक सीधा अगर हम लाइन करें तो दिस इज नॉट इन दिस टर्म बट दिस इज लाइक ऐसे, मतलब कि एक रेगुलर वे ऑफ इनकम इज नॉट देयर, रेगुलर वे ऑफ इनकम इज नॉट देयर इन विच एरिया, इन रूरल एरिया। So the second one is the economy. It means that कि people जो है income जो है fixed नहीं है, so this is the major lack कह सकते हैं, कहाँ पर है ये rural areas में है, जिसकी वजह से the people are still in the poverty situation and because of some dilemma as well, because the people are dependent on the natural things for the irrigation and all, and sometime अगर बारिश नहीं होता है तो उनका agriculture भी fail हो जाता है, crop failure का case भी बहुत ज्यादा है। So income is not stable in the rural areas, but in the urban areas, the people are working in the corporates, office, they are working in the service sector as well. So we can say that comparatively to rural areas have more stable jobs and more stable income levels of the people. Clear हो गया सबको? Second point भी economy. Economy is something which is related with the earning capacity. Earning कितना हो रहा है, ठीक है, सबको clear हो गया? Third one, लाइफस्टाइल, जीने का सलीका जिसको कहते हैं, लाइफस्टाइल लोगों का क्या है,
Like some people want branded clothes all the time. That is their lifestyle, that is their personality, that how they are going to groom themselves, right? But in the rural areas, we can say the lifestyle of the people are very much varied. They totally based on the need-based product only. So we can say the lifestyle or the living pattern of the both kind of areas, rural areas and urban areas, are different. They are very different. This can be important factor कह सकते हैं, because मतलब जो आज भी उनका जो लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है उसका कहीं ना कहीं रीजन दो चीज का, एक इनकम और एक लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि वहां पर अवेलेबल ही नहीं है चीजें, तो हाउ दे कैन चेंज द पैटर्न, हाउ दे कैन चेंज द लाइफस्टाइल. So lifestyle is one of the major focus of the companies, that they can approach the rural market. They can start some organized sector, they can start some branded products selling karna shuru kar sakte, they can do that. But still, like the lifestyle of the rural peoples, they are basically want to be that, they want to be in the traditional clothes, वो traditional clothes को ज़्यादा prefer करते हैं. They want to eat the convenience product, घर का खाना. They don't want to go out and all, because the lack of availability is one of the major reason of the lifestyle difference in the lifestyle. For example, we can take a very normal example. Like if someone is living in Patna and if they don't want to cook food, they can go outside and they can eat easily, right? They can go to any restaurant and all. But in the case of the rural areas, if there is a very small dhaba or there is no restaurant at all, so how we can go and we can eat there? So the concept is that there is two things, that the lack of availability, यानी कि वहां पर चीजें अवेलेबल ही नहीं है वैसे जिसकी वजह से लाइफस्टाइल बदला जा सके, या तो फिर उनका इनकम लेवल ही नहीं है कि अगर वो अवेलेबल भी हो जाए तो वो उसको कंज्यूम कर पाए. So the lifestyle, we can say, that is totally different in the urban areas and the rural areas. The mindset of the people is totally different. वहां के लोग they are मतलब कह सकते हैं they are totally based on the traditional things. But in the but in the urban areas, they are basically मतलब वो contemporary दुनिया में जी रहे हैं, कह सकते हैं. मतलब एक कह सकते हैं modernity आ चुका है. Next one is socio. It's related with the social. It is related with the samaj, samajik soch, socio. Socio-cultural background की अगर हम बात करें, तो due to the illiteracy level, मतलब because of the illiteracy level, the peoples are still in the myth. The people are believe in the superstitions there. That is the truth. Like I'm not saying that the urban people are not believing on that, but still because of the literacy rate is increased in the urban areas, now the people are becoming more and more rational. What is the meaning of rational? Rational का मतलब होता है दिमाग लगा के they are using, they are purchasing the product. Even फॉर एग्जाम्पल, अगर आज भी अगर आप लोग किसी को फोन लेना हो, ईयरफोन लेना हो, या एक नॉर्मल मास्क भी अगर आप यू वांट टू परचेज ना, यू विल थिंक अबाउट इट वंस. Why? Because you are literate, you are educated, you will use your mind for purchasing the product. You will believe in that their rationality. Rationality का मतलब क्या होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितना है, कितने दिन चलेगा, all these things, right? But वहां पर ये चीज नहीं है. कहां पर? रूरल एरियाज में. देयर इज स्टिल अ इलिटरेसी वाला सिचुएशन बहुत ज्यादा है. कल्चरल अडेप्टेबिलिटी, उन्होंने काफी सालों से जो कल्चर वो चलाते चले आ रहे हैं, जो निभाते चले आ रहे हैं, दे आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग. वो उसी चीज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में अभी भी है. ठीक है. एंड because of this reason, the superstition और जो other belief जो है, जो उनकी way of thinking है products के और goods के लिए, that is totally different. यानी कि if देखो एक normal sense बता रही हूँ, जो human psychology होता है, that is works everywhere, in the market, in the classroom, in the office, everywhere. So here what they want to say, that because of the illiteracy level, because of their psychologically mindset, and because of their thinking level, their belief, they are thinking quite differently as comparison to the urban consumers. जो rural consumers होंगे वो कोई भी product खरीदेंगे तो they will think once कि ये जो product है, मतलब जो urban वाले लोग होंगे वो अपने सोच के साथ से उस product को analyze करेंगे, और मतलब अर्बन वाले और रूरल वाले भी जो है उनकी अपनी थिंकिंग होगी, उस हिसाब से उसको एनालाइज करेंगे. सो द एनालाइजिंग एंड द बिलीविंग इन बोथ मार्केट, इन बोथ टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, दैट इज टोटली डिफरेंट. अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो इफ समवन, अगर किसी को कोई सांप काट लेता है तो वेयर वी हैव टू गो? कहाँ जाना चाहिए? सांप काट लेता है हॉस्पिटल. एग्जैक्टली.
but in between the consumers, the difference between the urban consumers and rural consumers are very much different. Their thinking for the product and services are vary करता है. Clear हो गया? सबको समझ में आया? Next point. Availability or reach. So due to the areas अगर हम बात करें, geographically की अगर हम बात करें, so हमारा जो गांव और रूरल एरियाज होता है वो बहुत ज्यादा साइड एरियाज में होते हैं ज्यादातर, या तो बहुत ही हेट्रोजेनस है. हेट्रोजेनस का मतलब समझते हो क्या होता है? एक जैसा जो नहीं होता है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हेट्रोजेनस. अभी तुम एग्जांपल में एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, मान लो कि नालंदा जिला ले लो, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ले लो, छपरा डिस्ट्रिक्ट ले लो, बहुत सारे विलेजेस उसके अंडर में आते हैं ना, बहुत सारे विलेजेस. अब ऐसे केस में हर विलेज में हो सकता है कि अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग बिलीफ हो. सो एक तो ज्योग्राफिकली भी डाटा स्कैटर्ड है, वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे है, और वहां पर पहुंच पाना भी कंपनी के लिए मुश्किल भी है, और उस पर ध्यान नहीं देने का रीजन वहां के कंज्यूमर्स है. तो कह सकते हैं कि ड्यू टू द एरिया विच इज डाइवर्टेड जियोग्राफिकली, बहुत जियोग्राफिकली डाइवर्टेड है, हेट्रोजेनस मार्केट है, तो ऐसे मार्केट को रीच करना या पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है. लॉजिस्टिक्स जो ऐसे रूरल मार्केट्स के लिए जो लॉजिस्टिक्स और जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच बनाया जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोडक्ट को जब हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसे रूरल मार्केट्स को अप्रोच करना. ठीक है, कंपैरेटिवली टू द अर्बन मार्केट. अगर हम अर्बन मार्केट की बात करें तो रूरल मार्केट तक पहुंच पाना कंपैरेटिवली मुश्किल है, बिकॉज ऑफ इट्स स्कैटर्ड नेचर, बिकॉज ऑफ द diversified nature, or we can say because of the heterogeneous nature of the rural market. अब मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ कि this is the case of the rural market. We all know that this is the case of the rural market, but let me tell you, let me correct you once कि ये सिचुएशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमारे इंडिया में है. पता होगा आप लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कोस्टल या आइलैंड वाले आपकी जगह है, जैसे पौंडीचेरी, अंडमान एंड ऑल, ये सब जो आपका जगह है, इसमें भी ये सिचुएशन है कि वहां पर भी कई बार बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं सामान को पहुंचाने में, मतलब रीच करने में, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिक रीजन. जैसे हिली एरियाज हैं, कुछ आइलैंड्स हैं. खैर अभी तो बहुत ज्यादा सरकार ने सुविधा मुहैया करवा चुके हैं वो, तो अभी तो पहुंच पा रही है, लेकिन अभी भी मैं बताती हूँ मिजोरम रूरल एरिया भी एक ज्योग्राफिक रीजन भी जो है, अभी भी इसी वजह से बहुत सारे रूरल एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं या फिर डेवलप्ड है ही नहीं. ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ स्टेट्स की और कुछ गांव की कहानी. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज हैबिट्स. अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो होंगे विलेज के होंगे, तो उनको ये चीज पता होगा कि यहाँ पर जैसे आप लोग 9 बजे 10 बजे आराम से उठते हो, वहां पर दिस इज नॉट पॉसिबल. ट्रू है ये चीज, सही बात है. अब हम हैबिट्स की बात करते हैं. तो हैबिट्स अगर हम देखें तो जो डेली रूटीन होता है एक रूरल कंज्यूमर का और एक अर्बन कंज्यूमर का, दैट इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, इन सो मेनी एरियाज, मतलब जैसे कि अगर हम रूरल गांव की देखें बात करें, तो गांव में आज भी लोग सुबह उठकर खेत में जाना पसंद करते हैं या फिर घूमना पसंद करते हैं. ठीक है, खेत पे फील्ड में दे वांट टू वॉक, and the people in the urban areas, they want to basically do yoga in their house, right? So the difference in their lifestyle, in their habits, in their आदत जो कह सकते हैं, वो बहुत ही अलग है दोनों जगह की. अगर हम बात करें अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस भी बात करें तो आपके रूरल एरियाज में अवेयरनेस की, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी भी है. मीडिया अभी तक प्रॉपरली वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन आपके अर्बन एरियाज में मीडिया का भी पूरा इन्फ्लुएंस है, अवेयरनेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा है. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका कंपटीशन. अगर हम कंपटीशन की बात करें और ब्रांड्स की कंपटीशन या कंपनीज की कंपटीशन की बात करें, सो कंपटीशन आपके रूरल एरियाज में कम है कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हाटएवर इज लॉन्च दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द, पहले आपका किस कहां पर आता है, दैट इज कम्स अंडर द अर्बन मार्केट में आता है.
तो रूरल मार्केट से कंपैरिजन अगर हम करें तो रूरल मार्केट में कंपटीशन जो है मार्केट्स का, कंपनीज का, दैट इज लो एज कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर बिहेवियर. अब ये कंज्यूमर बिहेवियर वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट. कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? Consumer behavior is the process, or it is we can say that it is the study which is done by the marketers to analyze the customer purchasing behavior, the customer's attitude, their motivation toward the product, and their psychological effect of the market in their mind. So what we can say that consumer behavior, किस तरीके से लोग सामान खरीदते हैं, उनका स्वभाव क्या है. कुछ कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, मार्केट जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते नहीं, आ जाते हैं. कुछ विंडो शॉपर्स भी होते हैं. और खासकर बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर टुवर्ड द प्रोडक्ट इज डिफरेंट. लाइक मैं भी अगर मुझे एक मोबाइल फोन भी खरीदना होगा, आई विल फर्स्ट एनालाइज 100 of times, then after that I am going to purchase. But so many people, they will first go and they will purchase it, right? So we can say that consumer behavior जो है वो आपका एक कह सकते हैं हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज फाइनली प्रोडक्ट जो है वो हमें कंज्यूमर को ही सेल करना है. ठीक है. जो माइंडसेट है कंज्यूमर का, रूरल कंज्यूमर का डिफरेंट है, वी ऑल नो. एग्जाम्पल में जैसे अर्बन मार्केट में टू बाय द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, द कस्टमर्स थिंक ऑफ ब्रांड एंड द अपडेटेड फीचर्स. मतलब अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बात करें तो अर्बन एरियाज में द पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट द ब्रांड, दैट व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड वी आर गोइंग टू चूज, व्हाट ब्रांड वी आर गोइंग टू परचेज, मतलब व्हाट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम व्हिच ब्रांड, राइट? What kind of features which is updated in that particular, इस particular brand में कौन-कौन से features जो हैं that is updated. So in short what we can say that कि आपका जो consumer behavior, मतलब normally अगर हम सिर्फ urban areas की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, तो अर्बन मार्केट में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी कंज्यूमर को खरीदना होगा तो दे विल फर्स्ट थिंक अबाउट द ब्रांड, दैट वी हैव टू परचेज ऑफ सोनी, वी हैव टू परचेज ऑफ एचपी, वी हैव टू परचेज ऑफ सैमसंग, राइट? एंड अपडेटेड फीचर्स क्या है, मतलब नया कुछ इसमें क्या एड ऑन हुआ है, राइट? वेयर एज अ रूरल पीपल, अगर हम रूरल पीपल की बात करें तो दे आर फर्स्ट थिंक अबाउट द मनी. पहले वो पैसे के बारे में सोचेंगे. Second, they will think about the durability, चलेगा कि नहीं, and you know all that they believe on the भारी होगा जितना उतना अच्छा होगा उनके हिसाब से. बाइंग कैपेसिटी, उनके दिमाग में सबसे पहले बाइंग कैपेसिटी आता है, मतलब वो खरीद पाएंगे कि नहीं, वो वाला क्वेश्चन आता है, मनी आता है. लेकिन वही रूरल अर्बन पीपल जो होते हैं, दे आर फर्स्ट थिंकिंग अबाउट द फीचर्स एंड अबाउट द क्वालिटी, बट द रूरल पीपल फर्स्ट थिंक अबाउट द मनी. सो दिस इज समहाउ वी कैन से दैट इट इज अ difference between the rural consumers and the urban consumers. अब ग्रोथ की बात करते हैं, इंडिया में क्या ग्रोथ है रूरल मार्केट का, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द रूरल मार्केट? एवरीवन टर्न. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर बिहेवियर, ग्रोथ ऑफ द रूरल मार्केट. रूरल मार्केट जो है वो इंडिया का टुमारोज मार्केट है. वी नो दैट राइट नाउ दैट इज नॉट एज सच डेवलप्ड, but because of the increasing the population, because of the हर एक स्टेट, हर एक कैपिटल, हर एक टाउन, हर एक शहर बिजी हो चुका है, स्पेस की कमी हो चुकी है. सो नाउ वी ऑल नो दैट द कंपनीज आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द रूरल मार्केट, राइट? तो द सबसे बड़ा अगर हम बात करें कंपनीज की तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, पार्ले फूड्स हो गए, वैसे कंपनीज हैं जो दे स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन द रूरल मार्केट्स एज वेल. ठीक है, मतलब बिकॉज अर्बन मार्केट्स हैव बिकम द सैचुरेटेड वन ऑफ द बिजिएस्ट, बोल सकते हैं कि अब जगह बचा नहीं है, ऑलरेडी मार्केट सैचुरेटेड कंडीशन में है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं. सो नाउ दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द अर्बन रूरल एरिया. तो स्कोप है फ्यूचर एक्सपेंशन का, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रूरल एरियाज कितना डेवलप होता है. जितना ज्यादा रूरल एरियाज डेवलपमेंट शुरू होगा उतना ज्यादा ही मार्केट में न कंपनीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे रूरल एरियाज की तरफ. इनफैक्ट जो रूरल मार्केटिंग है वो अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बहुत सारे फर्म्स और कंपनीज भी उनके डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर चुकी है. इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी जो है, रिजल्ट जो मतलब है पावर परचेजिंग जो है, कहीं ना कहीं दैट इज इंक्रीजिंग इन द रूरल एरियाज. मतलब नाउ अ डेज द सिचुएशन ऑफ द रूरल पीपल्स आर बेटर. अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो रूरल एरियाज जो है वो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से और कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला बेसिकली एरिया में से एक है.
यानी कि हो सकता है लग्जरियस प्रोडक्ट जो है वो आपके अर्बन एरियाज वाले ज्यादा कंज्यूम करते हो, बट रूरल एरियाज में आपके इंडस्ट्रियल और FMCG प्रोडक्ट में कंजप्शन में दे आर मोर देन अर्बन एरियाज, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज हाई. So we can say due to the competition in the urban market, the market has become more saturated, and we are basically now the market has started targeting the rural areas. तो ये आपका कुछ डेवलपमेंट के पार्ट्स में हम कहें. और भी यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, अगर हम इन्वायरमेंट को देखें, फिर सी द इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस अगर हम देखें, पैरामीटर्स अगर हम ध्यान दें, so environmental differences is one of the example of this. Environmental differences is there, like अर्बन एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेटर है, डेंसिटी पॉपुलेशन का हाई है, फिजिकल कनेक्टिविटी रोड्स वगैरह बेटर है, हाई मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन. अभी आप ये देखो ना, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से यू विल नॉट साथ में इकट्ठे बात हो. सो वही रूरल एरियाज में सेटलमेंट जो है बहुत छोटा छोटा है, 1000 लोग से ज्यादा नहीं है, बहुत कम कम लोगों का पॉपुलेशन है. इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल अगर बात करें बहुत लो है, लो डेंसिटी है. सोशल रिलेशंस की बात करें तो अर्बन एरियाज में लार्ज सोसाइटीज हैं, फिर लार्ज गेट टुगेदर के भी यहाँ पर ऑप्शन ज्यादा, जैसे क्लब्स आर देयर, मेंबरशिप्स आर देयर, फिर पार्टीज जो होती हैं वो सब, मतलब कहीं ना कहीं गेट टुगेदर के यहाँ पर ज्यादा आपके पास स्कोप है, लोग ज्यादा मिलते हैं. बट वही अगर हम बात करें आपके अर्बन एरियाज का, तो अर्बन एरियाज में जो पीपल है उनका कंपैरेटिवली जो है रूरल एरियाज में वो क्या है आपका, मतलब नॉर्मल गेट टुगेदर इज देयर, बट फॉर द इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड ऑल ऐसा कोई गेट टुगेदर वहां नहीं होता है. जैसे जैसे यहाँ सोशल, अगर आप एक ग्रुप में अगर यू आर गोइंग टू द क्लब, यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पर्सन. दे विल टेल यू अबाउट द न्यू थिंग्स हैपनिंग, दे विल टेल यू अबाउट द entrepreneurs, and they are telling about you new things. But in the concept of the rural areas, what we can say that the people are still, वहां पर लोग आज भी चौपल आर गेट टुगेदर के चांसेस बहुत वहां पर कम होते हैं, होते भी तो दैट इज ऑन द ट्रेडिशनल बेसिस फॉर पंच एंड ऑल, बट नॉट फॉर द डेवलपमेंट के लिए बारे में, न्यूज के बारे में, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट. ठीक है. अब अगर हम बात करें एक्सपोजर की, तो डेफिनेटली एक्सपोजर इज मोर प्रेजेंट इन अर्बन एरियाज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज. ठीक है. उसके बाद हम नेचुरल अगर रिसोर्सेज की बात करें तो अर्बन एरिया से बेटर या ज्यादा आपका कहाँ पर है, रूरल एरियाज है, बट दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, सो बहुत सारे रिसोर्सेज आज भी अंडर यूटिलाइज वाली कंडीशन है. ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट इनकम वेरिएशन आप लोगों को पता ही है, तो इसका एक चार्ट है दैट इज एस्पेक्ट्स अर्बन एंड रूरल, एंड आई गेस हम लोगों ने इसको पहले रिलेटेड कि प्रोडक्ट के लिए उनका क्या व्यू है. अवेयरनेस रूरल एरियाज में लो है, अर्बन एरियाज में हाई है. कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा रूरल एरिया से पता होना हो, अर्बन एरिया से मोस्टली पीपल हैव नॉलेज अबाउट इट. ठीक है. सेकंड इज कंसेप्ट. अगर प्रोडक्ट की कंसेप्ट की बात करें तो बहुत अर्बन एरियाज में लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है. रूरल एरियाज में इसकी थोड़ी सी कमी है, जानकारी की कमी. पोजिशनिंग की बात करें, यानी कि अगर प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस करना जाए, कस्टमर के दिमाग में पोजिशन करना चाहे, तो अर्बन एरियाज में यू कैन डू इट इजीली, बट इन द रूरल एरियाज इट इज डिफिकल्ट बिकॉज द माइंडसेट ऑफ द पीपल इज टोटली डिफरेंट. यूजर्स मेथड की अगर हम बात करें, तो अगर बात करें अर्बन एरियाज में, तो दे कैन इजीली एबल टू हैंडल द प्रोडक्ट, बट एज कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज, मतलब ग्रैबिंग और ग्रास्पिंग जो होती है ना, जो चीजों को समझने की जो क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में थोड़ी सी कमी है, मतलब प्रोडक्ट के मामले में. क्वालिटी प्रेफरेंस की बात करें तो क्वालिटी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज वाले क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, नॉट ऑन मनी. बट रूरल एरियाज में द पीपल आर मॉडरेट, दे आर नॉट इवन सो मच थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी, बट दे आर थिंकिंग अबाउट द मनी. फीचर्स की बात करें तो अर्बन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेट समथिंग लेटेस्ट, ट्रेंडी एंड ये, but rural areas में they are not giving as such importance to the features of the product. So these are the some terms of the rural and urban market. Do it. ठीक है. So anyone have any doubt whatever we discussed today? Whatever we discussed today, anyone have any doubt? किसी को कुछ पूछना है? Yes or no? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रूरल एरियाज में बहुत ही लो है कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज. जैसे वहां पर रोड्स की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी. ठीक है. मार्केट्स, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स की कमी है वहां पर. आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर वर्क नहीं करते हैं प्रॉपरली. आपके फॉर्मल वे ऑफ क्रेडिट की भी फैसिलिटी की कमी है. बट अर्बन एरियाज में विल गेट एवरीथिंग इजीली.
इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, वो फास्टली होता है एज कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में. सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है. डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कमी है. हाँ, लेकिन वर्क हो रहा है इसके ऊपर सून, एंड मतलब कह सकते हैं कि अब तो कहा ही जा रहा है कि रूरल मार्केट आपका अगला मार्केट होगा कंपनीज के लिए. सो हो सकता है धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, बट अभी अगर सिचुएशन देखें तो अर्बन के कंपैरेटिवली रूरल एरियाज में इंफ्रा इज नॉट एज सच बेटर. एनीवन हैव एनी डाउट? See you all in the next class on Thursday.